What's the biggest regret? I should have spent more time with my family. I should have understood the value. See, money cannot solve all your problems. Money can solve your money problems. तो वो क्या मोमेंट था जहाँ पे आपने कहा नहीं, आई हैव टू टेक दैट रिस्क? उस वक्त क्या जिम्मेदारियाँ थी आपकी, उसके बारे में ज़रा बताएं. Right, let's go to that. So people think there is pleasures in life. Sex is one pleasure, hunger is one pleasure, but there is a pleasure of building something. I just cannot explain in words. When you become famous, you are essentially slave of your own persona. You're not living your own life. You have to feed your old persona that you were, and that's the problem with being famous. एक podcast आपकी मैंने सुनी थी where you said that an employee is not a family member, he's a part of the tribe. You're in the same storm, right? Yeah. How do you see that kind of evolution जो कि technology की आ रही है? $20,000 if I spend per month, and let's suppose if I live for 78 years, तो I thought कि यार मुझे $7.2 million चाहिए. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन की हो गया. न्यूयॉर्क में वॉक होती है, सारे एक तरफ जा रहे होते हैं. मैंने भी वो वॉक करनी है, मैंने अपने ऑफिस जाना है. ये this is the life that I want. Nobody in the history of mankind has ever become rich by doing a 9-to-5 job. Ask yourself when you are 78 years old, when it's only 10 minutes left in your life, what would matter to you? Hello everyone, welcome to another engaging episode of The Cost of It. We always glorify the entrepreneurship, और जब हम बात करते हैं about a businessman, about a business, we actually don't know the cost behind it. So today I'm sitting with Usman Asif, one of the very famous and the biggest, like one of the biggest tech firms in Pakistan, DevSync. He founded that and running it. So thank you for inviting us to your amazing studio. Glad to be here. No, thank you so much for coming. I think it's my pleasure. Really, the way you reached out and the way the idea of the podcast, we talk about things that are built. We do not talk about the things what it took. So that's something that's very close to my why, and I'm looking forward to it. It's great to have you today. We'll talk about it. So I'll start with a very personal question. How old are you? I am 37 as of today. 37. So Yeah. I'll take you back to those days, 2008-9, जब आपने बनाई थी DevSync. Yeah. How did it start? Like, what was that transition like when you were kind of doing a job and coming towards a business? So, Wajib, I grew up in Rahim Yar Khan. It's a city, but it's very close to a village city. It's a city built by landlords so that they can manage their lands around the city. So it's a very small city, and I remember that the only jobs that were available within Rahim Yar Khan was either एक modeling की shop थी, 2-3 banks थे, and that's about it. So मुझे लाहौर आके पता लगा था कि बेकरी का पिज़्ज़ा कौन सा होता है और नॉर्मल पिज़्ज़ा कौन सा होता है. तो हमने तो बेकरी का पिज़्ज़ा ही देखा था. And I was growing up there. My mother was a government servant, and we were sort of in a landlord's family, but we didn't have any land. अच्छा, जब आपके पास लैंड ना हो और लैंडलॉर्ड फैमिली में होना, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती और कोई उसकी आपकी से भी नहीं होती. अच्छा, फिर यू वुड थिंक कि एक बच्चा जो यहाँ पे ग्रो अप करेगा ना, उसका कुछ तो होगा कि उसने मार्क्स अच्छे लेने हैं, उसका वाई होगा, ये करना. कोई ऐसा सीन था बॉस. आई वॉज वेरी लेजी. आई वॉज इन टू कंप्यूटर गेम्स. उस टाइम पे कंप्यूटर गेम्स वॉज वेरी न्यू थिंग. तो आई इंट्रोड्यूस टू रहीम यार खान द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर गेमिंग. आई एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू समबडी जो कि मेरा इंटरनेट कैफे रन करा था. क्या तुम थोड़ा सा इन्वेस्ट करो GPUs के ऊपर, तो हम ना गेमिंग कार्ड लगाते हैं यहाँ पे, तो इस पर लोग आया करेंगे. और फिर लोग नहीं आते, फिर मैं ही आया करता. और लोग मुझे बुरा भला कहते थे, यार तुम देखो, तुम ट्यूशन नहीं पढ़ते, तुम जाते हो गेमिंग कैफे खेलते रहते हो. तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने ना अपने सारे दोस्तों को कहा, मैंने कहा आज तुम गेमिंग कैफे आओ, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा. वो पैसे मैंने ट्यूशन के पैसे उधर नहीं दिए. मैंने कहा जी मैं पैसे देता हूँ आपके. तो वो आए, उन सब ने गेम्स खेली. अगले दिन मैं ट्यूशन पे हूँ और सारे गेमिंग खेले. तो सो ग्रोइंग अप इन रहीम यार खान वाज, एंड ऑल माय फैमिली वर डूइंग जॉब्स, एंड आई वाज टोल्ड कि आई शुड बी डूइंग द सेम थिंग. वेरी लिटिल विजन एंड ऑल दैट. सो केम टू लाहौर विद दैट, एंड वेरी इंट्रोवर्ट, नॉट गुड मार्क्स. स्टेज पे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बात करनी है, वो भी इंग्लिश में करनी है. सो आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट. सो एंड दैट्स हाउ आई वाज. It's a big transition, and for the audience, Rahim Yar Khan is a very small city, very limited resources, and you grew up in that city. तो फैमिली में जो है कुछ लोग होते हैं, दे डू बिजनेस बिकॉज इट्स इन देयर ब्लड. फैमिली से आती हैं चीज़ें, किसी को देखते हैं रिश्तेदार, क्लोज्ड, एनी वन इन देयर फैमिली. यू टुक अ वेरी रेगुलर पाथ. आपने जो रेगुलर एक तरीका होता है एजुकेशन का, वही लिया. सो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और ये जो कुछ करने का जो एक करेज है, हाउ डिड इट कम फ्रॉम? कहीं ना कहीं तो बैकग्राउंड में डेवलप हुई होगी ना. व्हाट वाज दैट? या आई थिंक द स्टोरी ऑफ योर लाइफ इज ईजियर टू सी व्हेन यू आर लुकिंग एट हाइंडसाइट, राइट? सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम. सो पहली बात तो हमारी फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर्स था नहीं, दूर दूर तक नहीं था. दूसरी बात ये कि मेरा अपना दिल भी नहीं था. आई डिड नॉट वांट टू बिल्ड माय ओन कंपनी. देयर वाज नो सच थिंग.
anything. The only thing that I wanted was to make money because I was very poor. And now that I look back, I think there is a difference between are you greedy or are you looking for freedom. And now I can think of it, I was never greedy, I was always looking for freedom. So I wanted to do a job, so I started doing a job. The moment I graduated, I was like, okay, जो भी पहली जॉब मिले ले लो. 17,000 रुपये की जॉब मिली, रिच एप्लीकेशन कंसल्टेंट एक कंपनी थी, उसमें 17,000 रुपये की जॉब मिली, वो ले ली. फिर पार्कफील्ड में थोड़ा सा जॉब की. दैट वाज माय वाई. आई वांटेड टू डू दैट. बट द थिंग इज कि वो उस टाइम पे साइमन सिनेक तो इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन एक लोकल कोई साहब थे, उन्होंने कहा कि फाइंड आउट योर वाई, व्हाट्स योर वाई ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट. आई सेड बैक कि अच्छा मेरा वाई ऑफ लाइफ क्या है. तो टर्न्स आउट आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. व्हाट इज अ लॉट ऑफ मनी? सो बीइंग एन इंजीनियर आई वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज अ लॉट ऑफ मनी. सो आई thought, okay, चलो जी $20,000 if I spend per month. उस टाइम पे भी बात कर रहा हूँ, $20,000 per month if I spend, and let's suppose if I live for 78 years. 78 years was a questionable thing too. 78 years हम जिंदा रहेंगे जी, 5% इन्फ्लेशन ईयर ओवर ईयर होगी. तो आई थॉट कि यार मुझे $7.2 million चाहिए. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन की हो गया. अच्छा, तुम्हारी करंट तनख्वाह कितनी है? करंट 17,000 तनख्वाह है. अच्छा, तो तुम्हें कितने साल लगेंगे ये करने के लिए? तो 83,000 years लगेंगे तुम्हें 7.2 million. So essentially what you find out is कि यार you have to do something else. This is not working out. What I wanted to do was I wanted to do a job somewhere outside. दुबई में, US में, बस पाकिस्तान से जाना है किसी तरह, बस पाकिस्तान से निकलो किसी तरह and do a job. बट पाकिस्तान से निकलने का चांस ही कोई नहीं. आई ट्राइड एवरीथिंग, आई कुडंट फाइंड अ जॉब आउटसाइड, एंड सो आई हैड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान. लेकिन मुझे बिजनेस का कब समझ में आया, मुझे क्लिक कब किया, वो तब क्लिक किया जब मैं US गया और मैं जॉब पे चला गया. इन इटसेल्फ अ स्मॉल स्टोरी इफ आई टेक 2 minutes. सो आई वेंट टू द US एंड माई थिंग वाज कि यार वो मैट्रिक्स मूवी में वो लंबे ओवरकोट नहीं ब्लैक कलर के पहनते, मुझे वो बड़ा वो सीन था. और हाउस ऑफ कार्ड्स में वो ब्लैकबेरी पे ऐसे कुछ कर रहे होते हैं. तो एक ब्लैकबेरी खरीदना है, एक ओवरकोट लेना है, एक ब्लैक कलर की ग्लासेस लगानी है, हाथ में स्टारबक्स पकड़ना है. सारे जा रहे होंगे, न्यूयॉर्क में वॉक होती है, सारे एक तरफ जा रहे होते हैं. मैंने भी वो वॉक करनी है, मैंने अपने ऑफिस जाना है. ये दिस इज द लाइफ दैट आई वांट. तो मैं US गया, मैंने जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और सबसे मिला. उन्होंने नई मैकबुक दी. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे मैकबुक दी है, किसी ने मुझे लैपटॉप दिया. हम तो एम्प्लॉइज देते हैं. और फिर मैं जाके अपनी टेबल पे काम शुरू किया. तो कोई काफ़ी देर बाद मैंने टाइम देखा तो 1.5 घंटा गुजरा था. एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरा तो यहाँ पे टाइम ही नहीं गुजरना. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आई हैव बीन इन बिजनेस सो लॉन्ग एंड बिजनेस हैज़ दिस फ्रीडम इन इट. So people think there is pleasures in life, sex is one pleasure, hunger is one pleasure, but there is a pleasure of building something. Yeah. I just cannot explain in words the passion of building something, and I realize now I am taken for business for my rest of my life. Owning something and having, like, it's like a baby, it's like a brainchild when you see it grow. तो वो खुशी, वो जो चीज़ें होती हैं. सो आई थिंक इन 2008 और 9 इट वाज अ गोल्ड माइन डिस्कवरिंग दिस के पाकिस्तान के अंदर बैठ के यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम दिस कंट्री एंड यू कैन एक्चुअली मेक मनी इन द US dollars, राइट? दैट वाज अ काइंड ऑफ अ गोल्ड माइन. हाउ यू डिस्कवर्ड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. और जो रिस्क है, जो क्योंकि यू ड्रीम्ड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, जिस तरह आपने कहा कि यू हैड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड एवरीथिंग, तो वो क्या मोमेंट था जहाँ पे आपने कहा नहीं, आई हैव टू टेक दैट रिस्क? उस वक्त क्या जिम्मेदारियाँ थी आपकी? व्हाट वर योर लाइक फैमिली होती है, चीज़ें होती हैं, तो वो मोमेंट उसके बारे में ज़रा बताएं. Right, let's go to that. I was 20 years old. I wanted to get married, have 4 kids by the age of 30. I was very clear कि यार शादी करनी है, बच्चे करने हैं, शादी करने बच्चे करने, जैसे ज़ोर से आया हुआ था मुझे. So everything, मुझे मेरा मसला है कि मैं एक दफ़ा प्लानिंग कर लूँ ना, फिर मुझे बस वो प्लान मेरे लिए अब सब कुछ बन जाता है. और हम रहते थे किराए के मकान में, 5 मरले का घर था, ऊपर वाला पोर्शन. वी वर शेयरिंग रूम्स विद 4 people. तो खैर एनीवेज उस टाइम पे अब शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, अभी बाइक है, गाड़ी भी खरीदनी है. मैं ये कह रहा था कि मैंने रिस्क नहीं लिया. मैंने रेंट देना है, मेरा लम्स में एडमिशन हुआ है, मैंने उसकी फीस देनी है, तो मैं रिस्क ले सकता नहीं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो ठीक है, मैं रिस्क लेता हूँ, लेकिन फिर रेंट कौन देगा? मेरी मदर गॉट रिटायर्ड फ्रॉम हर जॉब, सरकारी जॉब, 9,000 रुपये तनख्वाह थी क्या थी, और अब उनको भी ऑब्वियसली जिम्मेदारी है, तो रिस्क ले सकता नहीं हूँ. इट्स नॉट अबाउट के बॉल्स है या नहीं, बस रिस्क ले सकता नहीं हूँ. तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करूँगा. फ्रीलांसिंग में आई विल जस्ट मेक श्योर कि जितनी मेरी इनकम है उतना मैं फ्रीलांस कम से कम कर लूँ. पहली दफ़ा मुझे फील हो गया कि अच्छा ठीक है यार, आई कैन अर्न इन डॉलर्स एंड देयर इज़ अ गुड मनी दैट आई कैन मेक फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर माई एम्प्लॉइज, फॉर माई सेल्फ. अच्छा, और मेरे साथ एक और साहब भी थे जिन्होंने ये शुरू किया, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमने पहले महीने से हमने इतने पैसे बचाए हैं कि हम अपना मैकबुक खरीद सकते हैं. तो हमारे पास अपना लैपटॉप नहीं था, दोनों के पास नहीं था. तो वी बॉट आवर लैपटॉप फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इनकम, एंड देन सेकंड मंथ हमने कहा क्या करें, पैसे बच गए हैं, आईफोन ले लेते हैं. आईफोन ले लिया. थर्ड मंथ क्या करें, उसने कहा यार देखो एक कोई फलानी सोसाइटी बनी है, उसमें एक प्लॉट ले लेते हैं. यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हो गया. तो मुझे ये फील हुआ कि यार अच्छा ठीक है, मुझे कितने प्लॉट लेने पड़ेंगे $7.2 million के लिए? ये तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब यानी कि दिस इज़ नॉट द वे, एंड रियल एस्टेट इज़ अ सेफ बेट. यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए. अच्छा, फिर रिस्क क्या लें?
तो मुझे ये फील हुआ कि सर्विसेज, आपने कहा ना कि पाकिस्तान में एक टेक टैलेंट, वो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं सोची। मैंने ये सोचा कि हम एक स्टार्टअप करेंगे, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे मैंने पूरा पढ़ा, वाई कॉम्बिनेटर, दिस एंड दैट। समझ में आएगा जी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है जिसकी आपकी प्रॉब्लम समझ में आई हो। प्रॉब्लम क्या समझ में आई है? अच्छा, प्रॉब्लम ये समझ में आई है कि मैंने FSC की हुई है और FSC में एग्जाम्स जो होते हैं वो अनफेयरली चेक होते हैं, तो मुझे एक फेयरनेस ऑफ सिस्टम बनाना है। फिर मैंने एक फेयरनेस ऑफ सिस्टम बना लिया जो कि AI बेस्ड सिस्टम था, 2011 की बात कर रहा हूँ, जो कि हैंड रिटन एग्जाम्स को, ऐसे बेस्ड एग्जाम को ऑटोमेटिक चेक कर देगा। और उस चीज़ को फंड करने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग से पैसे निकाले। आई डिड नॉट बाय अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, मेरा अपना घर भी किराए पे था, हमने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं किया, लेकिन वो चीज़ बिल्ड की और मैं सेफली ही खेलता रहा। मैं रिस्क वाला मोमेंट जो है ना वो तभी हुआ था जब मैं US गया और मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि बॉस अब ना यू हैव टू बर्न योर बोट्स, क्योंकि अब नाउ यू आर नॉट हैप्पी इन अ जॉब, नाउ यू हैव टेस्टेड दैट थिंग वेयर यू बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन, दैट्स द ओनली पाथ। और वहाँ से रिस्क स्टार्ट हुआ। दैट इज़ अराउंड इन 2016 एंड इफ़ आई हैव टू गिव यू डेट्स, इन 2016 माई नेट वर्थ वॉज -$8,000, यानी सारा कुछ मिला लो, अपनी गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना कुछ नहीं है। 2016 की बात कर रहा हूँ। 2017 लेट, 2018 स्टार्ट, आई वॉज रिटायर्ड फॉर माई लाइफ। द थिंग ऑब्वियसली इट डिड नॉट टेक 1 year, इट टुक 8 years ऑफ एफर्ट, इट जस्ट बिकम विजिबल। हम लोहे को वो जब चोटें मारे होते हैं तो वो 20वीं चोट पर टूटता है, तो वो 20वीं चोट में टूटा होता है, वो 19 चोटें उसे लग चुकी होती हैं, राइट। सो 8 साल वेस्ट हुए इन अ सेंस के बिल्ड हुआ, ट्राई हुआ, लेकिन देन इट टुक 1 year फॉर मी टू रिटायर द गोल दैट आई हैड। आई वुड जस्ट से कि द जर्नी इन इटसेल्फ डजंट हैव टू बी रिस्की, you should not, you can actually plan it, calculate it. जी, और एक एनालॉजी में यूज करता हूँ कि फाउंडर की जो लाइफ होती है, इट्स लाइक जंपिंग ऑफ अ क्लिफ, जी, असेंबलिंग अ प्लेन व्हाइल यू आर फॉलिंग एंड यू हैव टू टेक इट ऑफ बिफोर यू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि इन दिस एंटायर जर्नी कौन सा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि मेरा ये जो प्लान है इट्स गेटिंग सक्सेसफुल नाउ, आई हैव असेंबल्ड द प्लेन, नाउ इट्स टेकिंग ऑफ। वो क्या पॉइंट था? क्योंकि एक होता है वैलिडेशन जो आपने की, आपने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड एज अ फुल स्टैक डेवलपर, उसके बाद आपने टीम बनाई, यू एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी, आपने अपनी टीम को वो किया, बट फ्रॉम मोमेंट कौन सा हुआ? अच्छा, सो अब इसमें इंटरेस्टिंग है, कोई एक मोमेंट नहीं होता। मैंने समझा कि फ्रीलांसिंग की सक्सेस विल बी माई सक्सेस। तो आप शुरू करते हो $5 an hour से, फिर आप जाते हो $15 an hour पे, फिर आप $25 an hour पे, फिर आप $35 an hour पे। यहाँ पे आके लिमिटेशन आ जाती है। अब इससे ऊपर फ्रीलांसिंग का रेट है नहीं। आप बड़ी गेम डालोगे, आप $100 पे चले जाओगे। तो मैंने ये रियलाइज कर लिया कि यार इसका ना, इसमें $7.2 नहीं बनने। तो सक्सेस जो मैंने सोची थी वो अचीव होने के बाद ये फील हुआ कि ये सक्सेस नहीं है। अच्छा, वहाँ से एक और प्लेन में जंप करने का, यार स्टार्टअप की सक्सेस इज द सक्सेस दैट यू वांट। सक्सेस कर लिया, स्टार्ट किया, 3 साल लगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट हमने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया। SaaS प्रोडक्ट का नॉर्मली होता है कि आप $15 के प्रोजेक्ट आना शुरू हुए, फिर $20 के होना शुरू हुए, फिर थोड़ा बहुत कस्टमर मिलना। हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमें पहला प्रोजेक्ट मिला $1 million का, ठीक, पहला प्रोजेक्ट, जिंदगी का फर्स्ट प्रोजेक्ट। या कितनी बड़ी सक्सेस है। And the moment I was done with that project, I shut down that product. Because I realized that this is not sustainable. This will never make me $7.2 million. So this success is not for me. So success को छोड़ना is it's a difficult thing. So fallacy of sunk cost होती है कि when you have invested something in something and you can see कि that thing is going, you would still keep on investing. I would not do that. So I realized कि $7.2 million इससे नहीं बनेंगे. So I left my startup. Then built the services company again. What I defined success is कि you just keep on making new mistakes. You're not repeating your mistakes. You are seeing अच्छा हाँ ठीक है, I am unable to do it, लेकिन अब ये नई मिस्टेक है। अच्छा, अभी नई बात हुई है, अभी कोई नहीं, that means progress हो रही है, that means कि you will get your thing. Success again एक दफ़ा नहीं फील हुई, मल्टीपल टाइम फील हुई, जहाँ पे जाके फील होता है कि यार यहाँ पे अब सक्सेस की सीलिंग आ गई है, अब एक और नई सीलिंग। At the end of the day, your core mission should be your mission. Everything else is an outcome. And so you cannot be driven by the crowd that is telling you कि यार माशाल्लाह you are doing so great और माशाल्लाह you are doing very bad. Like there are 2 types of people, people who would not believe in you people. लेकिन you should know at least what are you doing. Somehow I agree with you, लेकिन एक transition होती है कि when you start with the services business, most of us we think that when we build this product, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी stabilize हो जाएंगी। वो जो transition है, क्योंकि आपने कहा कि I build the product, I shut it down, इन failures के बारे में बताएं, and right now how is that transition? हाँ, so the product went very successful. We received $1 million first deal. We were able to conduct that deal. We saved a lot of money out of it. The reason I shut it down was, first, the deal I got was from government of Pakistan, and it's very difficult to work with government of Pakistan. Although I did make a lot of money, although it was a huge project, the impact was immense. बोर्ड के इम्तिहान में चेक किया था पूरे सिंध बोर्ड के, और बच्चों के, और वो डाटा मेरे पास आया, मैं हैरान रह गया. It was so much data and we could do so better with that data set. Sindh government
गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो जाता अगर हम उस डाटे पे काम कर लेते हैं. लेकिन आई रियलाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द गवर्नमेंट. एट द एंड हैप्पीनेस भी तो कुछ है ना, कि मतलब आपको मिन्नतें नहीं करनी अपने कामों के लिए, आपको मिन्नतें नहीं करनी पैसों के लिए, आपको अपना काम आगे फॉरवर्ड करना है. तो मैंने रियलाइज कि मैंने पाकिस्तान में काम नहीं करना. फिर मैं यूएस लेके अपनी प्रोडक्ट को, मुझे ये फील हुआ कि ये जो पेपर बेस्ड एग्जाम्स है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की ही है, बाहर नहीं है. सूनर यू रियलाइज कि यार द थिंग दैट यू आर बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट वेरी सून, इट्स गुड फॉर यू. तो आई रियलाइज यार इट्स गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. तो हेंस आई लेफ्ट एंड आई जॉइंड समथिंग एल्स. तो वो सक्सेस है. अब लोग कह रहे हैं यार $1 मिलियन बनाया है, अभी तो इसने भी बनाया है, अभी आगे क्या होगा. मुझे नजर आ रहा है यार आगे नहीं कुछ होगा बॉस, इसके ये हम आगे जाके अपनी सक्सेस से ही फेलियर में आ जाएंगे. While I could find better opportunities, being in Silicon Valley really helped. So I lived in Silicon Valley for 8 years. There were so many other opportunities. I realized that I can be a co-founder of another app and another app and another app. So I joined Sapling HR as a technical co-founder. My business partner is right now our chief business officer, Andy. He worked with me. He is now working with me. We had a very good exit on that product because that was a future product. So I was investing in my future. And then Go Moment and then many other successes that happened afterwards. Yeah, I'm sure that exit that you're talking about was not with the first or second or third product that you made. हम क्या करते हैं, कॉमन जो लोग हैं वो जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो अपने आप को ना डिटैच कर लेते हैं, समझते हैं कि बड़ा लकी है, इसके पास तो बहुत ही कुछ सुपर नेचुरल रिसोर्सेज रहे होंगे. सो आई वांटेड टू नो अबाउट दोज फेलियर्स कि जब आपने कुछ प्लान किया, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से हुई, बट देयर वुड बी मोमेंट्स जहाँ पे आपने कुछ प्लान किया और उल्टा ही हो गया. जी बहुत ज़्यादा. टेल मी अबाउट दोज मोमेंट्स और उसको आपने कैसे सस्टेन किया एंड हाउ यू केम थ्रू दोज मोमेंट्स. अच्छा चलें जी, आपने 1 मिलियन एग्जाम चेक करने हैं, आपने कमिट कर दिया कि मैं 1 मिलियन एग्जाम चेक कर लूँगा. गवर्नमेंट का डील कैसे होती है, कमिट हो गया कि 1 मिलियन एग्जाम चेक होने हैं. गवर्नमेंट एडवांस पे नहीं करती. मैंने उनसे कहा कि आप एडवांस पे नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कर सकूँगा. उन्होंने मुझे एडवांस पे कर दिया, लेकिन अब ये मेजर डील हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बोर्ड इन्वॉल्व है, और बोर्ड के इम्तिहान अगर लेट हो जाए तो लोग दुकानें तोड़ देते होते हैं, लोग आग लगाते होते हैं, लोग बड़ा मसला होता है. इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व क्या क्या है. ऐसे स्कैनर्स चाहिए हैं जो कि पूरे एशिया में अवेलेबल नहीं है. वो सिंगापुर में सिर्फ एक फीजी के कुछ स्कैनर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि इंपोर्ट करवाने हैं. फीजी वाले मुझे बेचेंगे, मैं एक्सपोर्ट करवा सकूंगा, मैं इंपोर्ट यानी यहाँ पे मुझे कोई कस्टमर तो नहीं फंस जाएगा. आई डोंट नो दैट. आई साइन द डील का मैं करवा लूंगा. इंटरनेट चाहिए एक खास 100 GB पर सेकंड का चाहिए था, क्या चाहिए था, वो हमें सखर कहना चाहिए था. सखर में दूर दूर तक कोई इंटरनेट नहीं था. वो पूरी वायर के लिए खुदाई करवानी है जिसमें हमने गवर्नमेंट से एनओसी लेनी है, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं उसमें. वो करवा सकूंगा, पता नहीं, बस साइन कर देंगे हम डील. फिर हमें सर्वर चाहिए AWS के. सिर्फ AWS सिस्टम वाहिद था, एजोर और GCP नहीं आया था. तो AWS के सर्वर चाहिए. और जब हमने काम शुरू किया, जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, उस दिन AWS ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया. क्यों जी, सखर में इतना बड़ा सर्वर क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग. उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया. अब कोई वे नहीं है वो खुलने का. अब कल प्रोजेक्ट है, मतलब एंड लिटरली इट केम टू अ पॉइंट के वेयर आई टेल माई टीम के मुझे पता हो गया कि अब ये सब कुछ खराब हो गया. आई स्पेंड द मनी, आई डन एवरीथिंग, सर्वर नहीं है हमारे पास, हम कैसे रन करें. कंप्यूटेशनल कॉस्ट कोई नहीं है, उसका तो कोई बैकअप नहीं होता, और सारा कोड भी वहाँ पड़ा हुआ है और सारा बैकअप, और बैकअप भी सर्वर्स के ऊपर पड़े हुए हैं, राइट. सो S3 भी सारा कुछ वहीं पे ही है. तो मैं टेल माई टीम के आप ना सखर बिराज घूम के आए, आप इन्जॉय करें. मैंने कहा यार पैनिक किया ना, तो मैंने ये बुश से सीखा था कि जब उसको 9/11 की खबर मिली थी ना, तो ही एक्टेड वेरी नॉर्मल. पता नहीं वो जो भी था उसके पीछे जो भी सीन होगा, ही एक्टेड वेरी नॉर्मल. और बाद में उसने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उसने बड़ा नॉर्मल एक्ट किया. मैंने कहा आप लोग घूम फिर के आए, कल सुबह प्रोजेक्ट करेंगे, आज रेस्ट करें. एंड आई वेंट टू द मस्जिद एंड आई वाज लाइक अल्लाह तू ही करवाएगा, यहाँ से आगे तो नहीं कर सकता ना. मतलब ये तो इस्तिखारा किया, सब कुछ किया, अपना ऑल इन लगा दिया. अब ये तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर है. फिर आई केम बैक, आई डिजिटल ओशन का एक छोटा सर्वर खरीदा, बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर खरीदे, माइग्रेट किया रातों रात बैठ के, उसको चलाना शुरू किया. इंटरनेट नहीं मिल रहा तो छोटे छोटे PTCL के बहुत सारे कनेक्शन ले लिए. स्कैनर्स नहीं आ रहे तो जितनी फोटोकॉपियर्स और स्कैनिंग की मशीनें कराची तक मौजूद हैं, सारों को यहाँ पे आउटसोर्स करके यहाँ पे बुला लिया. लोकल बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया कि यार चलो सारे एक एक स्कैन करो, तो कुछ तो होगा ना. तो इट टुक मी 2-3 वीक्स टू फाइंड आउट द एक्चुअल स्कैनर्स, द एक्चुअल इंटरनेट, द एक्चुअल समथिंग. और वो 2-3 वीक हम बस चलाते रहे. मीनवाइल गवर्नमेंट को बता रहे हैं सर एवरीथिंग इज ऑन प्लान, नथिंग टू वरी अबाउट, वी नो व्हाट वी आर डूइंग. टीम को बता रहे हैं कि हाँ ये आराम से हो जाएगा, बस स्कैनर्स आ रहे हैं, मेरी बात हो गई है. एक्चुअली में क्या है, कुछ भी नहीं हुआ और बहुत पैनिक है. मेरा था कि यार वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है तो सॉरी बोल देंगे. मेरा ये जुमला रहा है कि यार अगर क्या हो जाएगा सॉरी बोल देंगे यार, ठीक है, गिव अप. मतलब यहाँ पे आपने ये पूरा एक्सपीरियंस किया एंड देन यू वेंट टू सिलिकॉन वैली. वहाँ भी आपने स्टार्टअप लॉन्च किया, वहाँ भी आपने एक एग्जिट की. तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे, व्हेन यू बिल्ड अ प्रोडक्ट ओवर देयर क्या डिफरेंस था. और जो ऑडियंस है वो लाइक ऑल द पीपल इन द टेक इंडस्ट्री, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो ये करना चाहते हैं, आई वांट टू नो फ्रॉम यू. राइट. अच्छा लोग ये समझते हैं, हम स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया वी हैव सीन दैट पीपल थिंक कि लाइफ इज इन माइलस्टोन्स. फॉर एग्जांपल CSS हो जाएगा ना तो एक माइलस्टोन है और जिंदगी बदल जाएगी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. या खवातीन समझती है मेरी शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. या अगर मैं somehow US एंड अप कर गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. एज इफ के जैसा एयरपोर्ट पे एक गोरी खड़ी होगी, वो कहेगी वजी
साहब आ गए। वजह साहब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये एक जॉब है, ये इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई, आप बताएं आपने कौन सी पिक करनी है। अगली सारी जिंदगी तो वो गोरी ने आपके लिए फिगर आउट कर देनी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि ये एक माइलस्टोन है, ये अचीव होता है, उसके बाद माउंटेन जितना ऊपर जाते हैं आपको और ज्यादा चैलेंजेस। रियलिटी ये भी है यू आर नाउ गोइंग इन अ कंट्री जिनके सारे प्रॉब्लम्स फिक्स हो चुके हैं, जिनके सारे बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं। नाउ द स्टार्टअप्स दैट आर वर्किंग ओवर देयर इसके मेरे डॉग को वॉक प्रॉब्लम्स, सो उनके प्रॉब्लम्स ही और तरह के हैं, राइट। आपको कितना टाइम लगेगा वो समझने में, आपको कितना टाइम लगेगा उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स उनके लिए सॉल्व करने में, जबकि आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं वहां जाकर समझ में आ रही। सो इट्स अ डिफिकल्ट लाइफस्टाइल। पीपल से यार यहाँ पे मसले हैं, यहाँ पे बैंकिंग का इशू होगा, पेमेंट्स का इशू होगा, यहाँ पे बहुत सारे इशूज होंगे, लेकिन जिस तरह के इशूज यूएस में होंगे, जिस तरह के इशूज सिलिकॉन वैली में होंगे, वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे एक्चुअल बिजनेस मॉडल आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे फेलियर का इशू नहीं है। वापस क्यों आया? सो आई मेड माई $7.2 million, गोल अचीव हो गया। उसके बाद फील हुआ कि घूमना फिरना चाहिए लाइफ में। ट्रैवल इज माई पैशन, इट वॉज नॉट माई पैशन, वी अडेप्ट पैशन फ्रॉम ईच अदर। आपने अच्छा ड्रेस पहना होगा ना, तो मैं आपको देखूंगा कि अच्छा यार ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी यही पहन लेता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मुझे भी वही फील आएगी जो आपको फील आ रही है, नहीं फील आएगी। मुझे ना गाड़ियों का शौक है, ना मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, बस अडेप्ट कर लिया। 60 मुल्क फिरने के बाद ये फील हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पैशन था, मैं तो एम ही कर रहा था। यानी मैं लोगों ने कहा कि पेरिस जाओ रोमांटिक होता, तो मुझे भी फील वहाँ बड़ा रोमांटिक है, बड़ा तस्वीरें खींची जिगर मैं आई फील रोमांटिक इन पेरिस विद 24 अदर्स। आई डोंट फील रोमांटिक, इट सक्स। ये मुझे मेरी अम्मी ने समझाया। वैसे मैं उनको लिखे गोल्डन गेट ब्रिज पे ना, मैं कहा ये गोल्डन गेट ब्रिज है, ये फलानी मूवी में आया हुआ है। अम्मी कहती पंजना ज़्यादा प्यारा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं आप पेंडू है। फिर मुझे बाद में नहीं, मैं फ़ोन नहीं पेंडू, तुम बके हुए हो, तुमने मूवियाँ देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, राइट। सो ट्रैवल कर लिया, मनी बना लिया, रियलाइज्ड कि आई डू नॉट फील बिलोंग्ड, आई एम नॉट happy, I'm very depressed. All of my life I've been doing things that people are telling me to do things. I don't want to be this, and I need to understand who I am. I winded back कि यार when did I feel belong last time? तो I realized कि when I was in Pakistan I felt belonged. अच्छा था, थोड़ा था, जैसा भी था, I felt belong. अपनी कंट्री थी और there were so many things that I could fix. There was impact was huge. उधर कोरोना लेते थे, मजा आता था। अब यहाँ मर्सिडीज पे लें तो मजा नहीं आता। So that day I decided we'll come back. My wife supported me on that too, and so we packed everything very abruptly, like 2-3 weeks we packed everything, we came back to Pakistan, decided कि अब यहीं पे ही हैं, जो भी करना होगा, बच्चों को स्कूल भी शिफ्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, and never regretted that decision. It was amazing. सर्विसेज में भी इसीलिए वापस आए कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो प्रोडक्ट नहीं करेंगे, सर्विसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सर्विसेज भी करेंगे ना, यहाँ पे इम्पैक्ट भी इसका ही होगा, पैसे भी बनेंगे और लोगों का फायदा भी होगा, तो इसलिए सर्विसेज में वापस आ गए। वरना मैं आई एम एक्चुअली प्रोडक्ट गाय। तो दैट्स हाउ। फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप वाली जो फीलिंग है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। Wherever you go, it can only be in your own homeland. Definitely. तो you mashallah have built this company with 1500 to 2000 people. जी। तो आप इकोनॉमी पे भी काफ़ी बात करते हैं। Right. We have seen you, you know, talking about a lot of things you want to change here in Pakistan. Right. तो what is that kind of goal, mission जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं? So there are 2 missions. एक मेरा पर्सनल मिशन है और एक कंपनी वाइड मिशन है. So I've played different games in my life. Personal mission was 7.2 million that was achieved. That was done. Giving back to the society. So, उस फेज में आप आ चुके हैं या नहीं? अभी और भी कोई पर्सनल? नहीं. So giving back to the society में भी थोड़ा सा इसमें confusion है. So personal mission obviously $7.2 million हो गया. उसके बाद ये फील हो गया कि I can play the game of buying a yacht, buying a private jet and all that. लेकिन नहीं, this is not my glorious stuff है जो. Yeah, this is not my thing. Then I went into traveling हो गया. अच्छा फिर then I went into becoming famous. So I started going on podcasts, brand building और इस सब में चला गया. I think we are all looking for the love our parents could not give us. Essentially, I was looking for attention, and very soon I realized that now I'm getting attention, but it's not good. It's bad actually. It's bad because now you are living a persona that is not you. So we evolve. आज हम ये पॉडकास्ट करें ना, आज से 10 साल बाद मैं इन बातों में बिलीव नहीं करूँगा. I will be a different person. I will be evolved. लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो ये कहेंगे कि ये मुनाफिकत है, पहले ये बात कर रहा था, अब ये बात कर रहा है. People do not differentiate between hypocrisy and evolution. And when you become famous, you are essentially a slave of your own persona. You're not living your own life. You have to feed your old persona that you were, and that's the problem with being famous. So I realized that थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई उसकी obviously famous होने की वजह से, लेकिन शुक्र है फिर भी ख्याल आ गया. तो मैं famous होना is not my why. लोगों को FOMO होता है, मुझे phobia होता है, fear of being included. I do not want to be included. I don't want to be at parties. I don't want to meet new people. I know I'm very happy where I am. The game that truly inspired me is I was coming from Rahim Khan. I did not have guidance available. We do see entrepreneurs when they become somebody. There is not a single entrepreneur that I can find from Pakistan जिसने अपनी सारी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया हो, ताकि एक आम बच्चा जो आज अपनी जर्नी देख रहा है तो वो अपनी स्टेज के हिसाब से मेरी जर्नी को जाकर देख सके, यार मैं यहाँ पे कंफ्यूज था. रियलिटी ये है हर बंदा कंफ्यूज है, रियलिटी ये है हर बंदा लॉस्ट है, लेकिन वी प्रिटेंड के नहीं, हमने फिगर आउट कर लिया लाइफ को, एंड दैट्स बैड. सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वी टेंड टू डू दैट. आपने बात की एवोल्यूशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट कि यू सेड दैट यू आर अ प्रोडक्ट गाय, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू डू द सर्विसेज. AI
जी, जो कि आ चुकी है, ठीक है. सो स्पेशली इट्स अ बिगेस्ट, आई थिंक पर्सनली थिंक दैट इट्स वन ऑफ द थ्रेट टू द सर्विसेज बेस्ड कंपनीज, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर बात की इट्स नॉट, बट श्योर, या बट आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग ऑटोमेटेड, वो फास्ट हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं. तो आपके जो सर्विसेज वाले बिजनेस में उसका कितना इम्पैक्ट है, आप क्या समझते हैं कि हाउ डू यू सी इट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी, फॉर ऑल द पीपल? एक पॉडकास्ट आपकी मैंने सुनी थी वेयर यू सेड दैट एन एम्प्लॉय इज नॉट अ फैमिली मेंबर, ही इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइब, यू आर इन द सेम स्टॉर्म, राइट? हाउ डू यू सी दैट काइंड ऑफ एवोल्यूशन जो कि टेक्नोलॉजी की आ रही है? हाँ, अब दो बातें होंगी, फैमिली वाली बात पे भी कर लेते हैं, लेकिन एवोल्यूशन एआई की बात करते हैं. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जूम आउट लेवल पे वी आर सेलिंग ह्यूमन सर्विसेज. यस. आर यू टेलिंग मी कि आफ्टर एआई ह्यूमन सर्विसेज विल नॉट बी नीडेड? I don't think so. There will be different services that are needed. इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद क्या ह्यूमन सर्विसेज नीडेड नहीं थी? स्टीम इंजन चलाने वाले लोग तो चाहिए थे ना फिर भी, ठीक है. अब आप हाथ से नहीं बना रहे रोड, लेकिन कुछ और बनाना है. अब एआई आ गया तो एआई इनेबल्ड लोग चाहिए होंगे. आई डू नॉट बिलीव इन एआई, आई डू नॉट बिलीव इन द रीजनिंग ऑफ एआई. आई डोंट थिंक इट्स एनीवेयर नियर रिप्लेसिंग अ नॉर्मल ह्यूमन. आई थिंक इट्स जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट डूइंग द मेंडेन टास्क. एंड आई एम सो ग्लैड. आई हेटेड माई जॉब. आई कैन टेल यू, आई लव्ड प्रोग्रामिंग. आई हेटेड माई जॉब बिकॉज आई वॉज डूइंग मेंडेन टास्क. Every single day I come, I do the same task again. Now with AI, those things are automated. Now I can do really creative stuff with programming. I can do really what I love doing. Right? It's not about the answer, it's about the questions. If we talk about the facts, when you started the services, जो time था 2008-9, that was a prime time. अभी 2 से 3 साल पहले, a lot of people, I think majority of the people in the country in Pakistan, they realize that freelancing services, we can do IT exports, ठीक है. तो इस टाइम पे आके जो फैक्ट्स बताते हैं, the demand and supply, आपको नहीं लगता कि जो supply है that is going to be bigger and the demand due to the AI is going to be less? Not at all. ये perception, because we hear it a lot कि AI is a disruptor या ये जो है एक enabler है, तो इस पूरी जो वर्कफोर्स है इसको enhance करना to be ready to be familiar to work with AI. Okay, so the reason there is tech layoffs happening right now, it's still post-COVID era that we are in. The huge demand that was created, which was not real, now it went down. It's still adjusting itself. Now our new workforce is needed. तो चलो पुरानी वर्कफोर्स को फारिग करके नई वर्कफोर्स को लेके आ रहे हैं. देखिए, AI enabled वर्कफोर्स तो अब आएगी जिनका माइंडसेट AI वाला होगा. वर्कफोर्स की डिमांड नहीं खत्म हो गई, अच्छे बंदे की डिमांड नहीं खत्म हो गई. सिर्फ बात ये हुई है कि अब लोग चेंज नहीं होना चाहते. इन जनरल मैंने देखा ह्यूमन बिहेवियर इसके वो चेंज को अवॉइड करते हैं. बिजनेसेस भी, ह्यूमंस भी, दे जस्ट वांट टू कीप सेलिंग द ओल्ड थिंग्स दैट वी नो के चाहिए. कंफर्ट जोन में उसकी अब डिमांड नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये फैमिली वर्ड भी नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली वर्ड ना दोनों लोगों को हर्ट करता है. बिल्कुल. जो बिजनेस ओनर ये कहता है कि आप मेरी फैमिली हैं, बाद में वो उसी फैमिली को फायर करके नई फैमिली ले आता है. तो किस बात की फैमिली थी यार ये? और वो अपनी सेल्फ एस्टीम लूज करता है कि यार ये मैंने क्या किया है. हालांकि उसको ये करना चाहिए एज अ जॉब ऑफ अ सीईओ. इट्स हिज जॉब टू मेक श्योर टू डू अ डिसीजन विच इज बेस्ट फॉर हिज कंपनी. अच्छा, सेम गोज विद द इंजीनियर ऑल्सो. वो सोचता है यार ये मेरी फैमिली है, मुझे ज़रूरत नहीं है अपने आप को ओन करने की. ये मुझे ओन करता है, ये मुझे बता देगा मैंने क्या करना लाइफ में, ये मेरी केयर करेगा. वो नहीं करेगा केयर, वो अपनी केयर नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारी केयर क्या करेगा? तो ये वर्ड बहुत डिसीविंग है. डू नॉट यूज़ इट. मेरा नहीं ख्याल नहीं, मुझे फैक्चुअल पता है कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन डिमांड, huge increase in demand in AI, in data science, in cyber security. If you are an engineer right now, you want to plan for next 4 years. देखें, ये तो समझिए आपके AI एक रियलिटी बन गई है. अब AI जब रियलिटी बनेगी तो हमारा काम बढ़ेगा AI का नहीं, डेटा साइंस का, साइबर सिक्योरिटी का. डेटा होगा तो यही लगेगी ना भाई. हाँ, और फिर उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी, और वो सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होगी. राइट? सो आई थिंक राइट नाउ इट्स द टाइम टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, एंड द फ्यूचर इज नेवर बिन मोर क्लियर. द इंटेलिजेंस इज नाउ डेमोक्रेटाइज्ड एंड यू कैन मेक डिसीजन ऑन योर ओन. यू नीड थेरेपिस्ट, यू हैव इट एट होम. यू नीड एनीथिंग, इट्स एट होम, बेसिक लेवल पे. अब उससे ऊपर चल के सीखें. AI enabled jobs are increasing. That's what I'm saying. Yeah, so that AI enabled part of it. आज का जो बच्चा है, आज का जो न्यू ग्रेजुएट है, who wants to start his career in the technology business, especially in the Pakistan, हमारी जो क्योंकि हम services based, like a lot of big products are successful, उनके पीछे यही teams होती हैं. तो आज as we speak, what would be your advice to them, like considering के जो AI enabled demand है, उसके साथ what are the things that they should be? अच्छा, देखें, दो चीज़ें आपने कही. एक ये कि आजकल का जो बच्चा है जो मार्केट में आ रहा है, वो टेक बिजनेस में क्या सोचे. दिस इज अ टू डिफरेंट थिंग. आई डू नॉट सजेस्ट एनीवन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. यानी मेरा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बिलीफ है. मेरा ख्याल ये कि बिजनेस, यू डू नॉट एक्टिवली वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन.
business happen to you. You see a problem that other people are not seeing and it becomes very clear, and that's the time you should start a business. एक बच्चे को आजकल जो टेक में आ रहा है उसको सिर्फ ये प्लान करना चाहिए कि वो टेक में कैसे AI enabled रहे. उसको ज़्यादा इससे ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए learning the core concepts. The concepts will not go away and using the core concept while enabling themselves with AI also. जैसे फॉर एग्जांपल आज भी .NET की डिमांड है, आज भी जावा की डिमांड है, अगले कुछ अर्सा भी रहेगी. .NET के अंदर AI एनेबलमेंट आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के अंदर AI एनेबलमेंट आ जाएगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इज नॉट गोइंग एनीवेयर, SAP इज नॉट गोइंग एनीवेयर, Oracle इज नॉट गोइंग. देयर विल बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड वेयर Oracle विल नॉट बी यूज्ड, SAP विल नॉट बी यूज्ड. द लाइकलीहुड ऑफ दैट हैपनिंग, अगर वो होगा तो आपको बहुत टाइम मिलेगा अपने आप को चेंज करने का. डोंट बिकम एन आईफोन इंजीनियर, डोंट बिकम एन एंड्रॉयड इंजीनियर, क्योंकि आईफोन और ये एंड्रॉयड का क्या चलेगा ये नहीं हो, ये तो नहीं कहा जा सकता ना. इनेबल योरसेल्फ इन द पैराडाइम इज नॉट गोइंग एनीवेयर. तो प्रोग्रामिंग में रहें. डिग्री की वैल्यू आज भी है. ये स्किल सीख लूँ, डिग्री छोड़ दूँ, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं. ये पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं, और ये बातें जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे. वो उन लोगों के लिए हैं जो समहाउ डिग्री नहीं ले सके, वो आ गए हैं फील्ड में, अब उन्होंने डिग्री शिफ्ट करनी है. चलो यार डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं, तुमने जो कर लिया, अब इस आगे तुम सीख सकते हो. एक कंप्यूटर साइंस को सीखा जा सकता है, लेकिन एक बच्चा जिसके पास आज ये चांस है कि वो अपना करियर डिसाइड कर सकता है, वो जरूर कंप्यूटर साइंस में जाए. दैट्स अ वेरी गुड फील्ड टू बी इन. इट्स काइंड ऑफ अ मस्ट हैव दीस डेज. अच्छा, आपने बात की स्पेशली जो मतलब बिजनेस की, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस. लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज़ को. अ लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वी आर डूइंग अ बिजनेस. इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस इज समथिंग एल्स. तो remote jobs or freelancing is just a fancy job that you're doing outside, and it's good if you're doing remote. So let's suppose अगर आपका way of life ये है कि यार आपको ना ज़्यादा पैसा बनाना है, तो फ्रीलांसिंग में डेफिनेटली आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा. यहाँ पे प्रोविडेंट फंड भी होगा, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होंगी. उसमें ये सब कुछ नहीं होगा. आपको इकट्ठे एक पेमेंट मिल जाएगी टैक्स फ्री, वो आपको एक दिन नोटिस पर फायर कर देंगे. आपको 2 महीने लगेंगे नई जॉब ढूंढने में, तो वो समझो आपका 5 महीने, अगर 3 महीने की जॉब है और 5 महीने, तो 5 महीने की सैलरी को एवरेज कर लें दोनों साइड पे. तो जौन सा लाइफस्टाइल आपके लिए बेहतर है आप वो वाला लाइफस्टाइल ले लें. लेकिन ये बिजनेस नहीं है, रिमोट जॉब भी बिजनेस नहीं है. थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें इस चीज़ को कि एट व्हाट पॉइंट जो लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, what's your advice to that? So contractorship या self-employment, it's about providing solutions and selling your services at a premium rate versus giving your 9 to 5 to a company to do that. देखिए, nobody in the history of mankind has ever become rich by doing a 9 to 5 job. मेरे अपने employees भी यहाँ बैठे हुए हैं. बिल्कुल सिंपल सी बात है. If you want to become rich, job is not for you. ठीक. It cannot be louder. Let's be honest with each other. If you want to make slightly more money than a normal job and slightly increase your risk, maybe freelancing is the way to go. और वो भी हर बंदे के लिए नहीं है. रिस्क एपेटाइट नहीं होगी, कुछ लोगों को सेलेबिलिटी नहीं होगी, उसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट भी खुद ही करनी है. अपवर्क की प्रोफाइल आपने बिल्ड की, अपवर्क की प्रोफाइल एकदम किसी बैड प्रोफाइल की वजह से बंद हो गई, तो आप एकदम जीरो पे आ जाओगे, राइट. सो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. वर्सेस जॉब पे आप एक स्टेबल जॉब कर ही रहते रहोगे, आपकी गाड़ी भी वो कर लेंगे मैनेज, आपका हेल्थ केयर और सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, तो वो एक स्टेबल जॉब हो जाएगी. फिर अगर उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, तनख्वाह और कम हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी और चेंज मोस्टली आपको अफेक्ट करेगा ही नहीं. ये आपने डिसीजन लेना कि मैं किस जगह पे, किस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करता हूँ. हाँ, मजीद रिस्क लेना है तो फिर आउटकम ओन कर लें. आउटकम ओन करना क्या होता है, यार मैं लॉजिस्टिक का मसला पाकिस्तान में फिक्स करूँगा. नाउ दैट्स आउटकम. अगर आप फिक्स कर लेंगे तो यू विल बी द बिलियनियर ट्रिलियनियर. नहीं फिक्स करेंगे तो नोबडी विल गिव अ शिट अबाउट यू एंड नोबडी विल केयर फॉर फेलियर्स. आज मेरी स्टोरी आप इसलिए सुन रहे हैं कि ये एक सक्सेस है. अगर ये सक्सेस ना होती तो मेरे सारी फिलॉसफी में सोक्रेटिस भी होता ना, आपने मेरे बारे ना बैठे होते. एग्जैक्टली. अच्छा, आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ बिकॉज यू हैव बिन थ्रू दीज लाइक ऑल 3 डिफरेंट जोन्स. आपने फ्रीलांसिंग भी की, आपने कॉर्पोरेट जॉब भी की, एंड नाउ यू आर रनिंग योर बिजनेस. इफ़ आई टेक यू बैक, लेट्स से स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट्स भी किए, शुरू में आपको ले जाऊँ मैं, जब आप स्टार्ट कर रहे थे इस चीज़ को, वुड यू डू द सेम, या क्या ऐसा है जो डिफरेंटली आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए था, या उससे आपके आउटकम्स डिफरेंट होते? आई वुड नॉट डू अ सर्विसेज बिजनेस. ओके. I would not do that. I am right now running a company of 2,000 people, but that's not the ideal business that I want to be in. The reason I'm doing services business is, one, for me, Pakistan is not negotiable. I want to live in Pakistan. That's I want to die in Pakistan. I want to live in Pakistan. अभी तक यही है, वो चेंज होता पता नहीं चलता पाकिस्तान के हालात का. लेकिन on one side you're saying that you don't want to do the services business, but DevSync itself gave you the recognition that of course this company has made Usman Asif. Hence I'm saying people do not differentiate between hypocrisy and evolution. The thing is that there is a context to everything. Right now you're asking me, life is not a game of chess. It is a game of chess but in a different way. Chess में आप start से start लेते हैं. Life is given to you. आप मुझसे आज पूछ रहे हैं जबकि मैं एक CEO हूँ एक कंपनी का जो कि 2000 एम्प्लॉय चला रही है. अब obviously leaving that and starting something of my own, it's a huge decline. Do I want to take the decline? Maybe not.
But let's suppose if you start me from zero, now I can start this or that, I would pick that. We are in the business of human leverage. Humans are very uncertain. Yeah. Managing humans is a difficult thing. Nobody wants to be managed. Everyone wants to be free. And the more free they are, the less employable they become. I don't want to be in this business. I want to be in the technology leverage business. Okay. But now this decision is made for me and I now want to see it through. मेरा एक और भाई है कि I want to see a company that I started till IPO. वो IPO करना है, उसकी लर्निंग अपनी होगी, तो वो मेरा काफ़ी वो है, तो वो मुझे अब अचीव करना है. लेकिन अगर दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो डेफिनेटली प्राउड बिजनेस करूँगा. प्रोडक्ट बिजनेस. लेकिन देखिए, आई हैव सीन लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोडक्ट में, अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हैं, इवन आप दुबई में भी हैं, तो स्टार्ट विथ सर्विसेज बिजनेस. To fund your products, to validate your ideas, क्योंकि when you assume that this is going to change my life, this is going to change people's life, लेकिन ये सब आपकी assumptions होती है. When you go to your first customers, when you go to talk to them, आपको reality check मिलता है कि I might miss the biggest thing जो कि नहीं होनी चाहिए थी. तो उस चीज़ को sustain करने के लिए the services business, a lot of people are doing that. तो right now, raising investment, being on the top of the services business, क्योंकि बहुत कम companies है पाकिस्तान में who have achieved to this level जहाँ पे services आप provide करें. Transitioning to a product, what is the goal? There is no plan of transitioning this to a product-based company. There is no plan of that. ठीक है. So let's be very clear. A services DNA is different. A product DNA is different. Changing that will not be fair to the people who have committed their life to DevZing. Not everyone in DevZing thinks like I am. मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं product guy हूँ, मैं हमेशा से वो रहा हूँ. I would not change DevZing's business. हाँ, हम solution में चले गए, already चले गए में. Solutions ये होते हैं, for example, let's suppose एक client है, उसको एक चीज़ चाहिए, वो दूसरे client को भी चाहिए, तीसरे client को भी चाहिए, तो हम एक छोटा सा एक solution बना के वो solution भेज देंगे. Don't open the Pandora box again and again. वो एक ही तरीके से आप चल रहे हैं. जी, वो हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं. वो हर कंपनी का फ्यूचर, जैसे नेटसोल है, उन्होंने BMW की चीज़ बनाई, वही मर्सिडीज को बेच रहे हैं, वही सब कुछ, राइट? सो दैट्स द फ्यूचर ऑफ एनी सर्विसेज कंपनी दैट वी आर डूइंग. देयर इज नो प्लान ऑफ कन्वर्टिंग दिस टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. मे बी आफ्टर टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम DevZing, व्हिच आई एम नॉट प्लानिंग ऑन डूइंग फॉर नेक्स्ट 10 years at least, I would do a product again. Because product is again my passion. रिटायर कब होना चाहते हैं आप? Define retirement. If retirement is where money is not an object for you, I define retirement as money is not an object. So that was when I was 27 years old. I was retired for my rest of my life. If you are asking ke I sit on Cuban cigar and gold chains or sitting on a beach in Bali, that I never want. I do not want that. I really cannot wait to come to the office on Mondays. This is my life. If you remove every object from life, I would still choose to come here. I enjoy it. So this right now, this is fun. This is amazing. The team that I have, these are my best people. Like I cannot tell you, we have to meet. We talk and we do things together. This is amazing life. Amazing. So coming back to the last part of it, and it's been an amazing, enlightening conversation for all the audience. And in Pakistan, we have people like you, so we need to boost the economy. तो आप बात करते हैं to elevate the economy as well. और जहाँ पे government है, of course, slowly and gradually things are happening. किस तरफ देख रहे हैं इस चीज़ को जाते हुए? दो चीज़ें हैं. एक तरफ से गवर्नमेंट से बहुत खुशी है और एक तरफ से बहुत मायूसी है. जो खुशी है वो इस बात से है कि यार देखें, गवर्नमेंट से हमें ये कंसर्न नहीं होता कि किसकी गवर्नमेंट हो. एज अ बिजनेसमैन ना, लोगों की इमोशंस होती हैं कि यार मेरे ख्याल से इसकी हुकूमत होनी चाहिए, उसकी हुकूमत होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, राइट? As a businessman, we are not concerned with that. We are concerned with the consistency of policy. But we are concerned with कि जो भी गवर्नमेंट आए वो बिजनेस के लिए फ्रेंडली हो, वो हमारे मसलों को सुने और पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करे. यही हमारा सिर्फ गोल होता है. हमें गवर्नमेंट से इस टाइम पे जो कोर नीड थी, हमारे बजट में वो बात हमारी नहीं सुनी गई, एंड वी आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट. और कोर नीड क्या है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है. दैट काइंड ऑफ टैक्स is causing our people to leave Pakistan. ठीक, जो अच्छे लोग हैं वो चले जाएंगे और हम सस्टेन नहीं कर सकते ऐसे. Unless this tax issue is solved in Pakistan, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर तो कोई फ्यूचर नहीं है. अगर सॉल्व हो जाएगा तो we have immense future right now. तो आई होप कि गवर्नमेंट की सेंसेस इसमें वापस आएँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टैक्स कम करे. मैं समझ वो क्यों नहीं कम करे, वो इसलिए नहीं कम करे क्योंकि IMF की शराइत हैं, सैलरीड को एम्प्लॉय टैक्स करेंगे, दैट्स द ओनली. बट they have to increase the bracket, they have to do other things to find ways to make money. सिर्फ एक एम्प्लॉय जिस बेचारा जो पहले ही टैक्स दे रहा है उसको मजीद दीवार के साथ लगाना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. इसलिए कि वो लोग बोलते नहीं है, नॉट अ गुड आइडिया. To make that change happen, आपको लगता है कि in the future you have plans? Yeah, so I suggested a solution. I don't know why is it so complicated to. I suggested कि businesses like us, like tech businesses, see problem हमें right tax कर दे. The speed of the internet is the most last issue that comes in mind when you're global. तो भाई कहीं भी आप चले जाए दुनिया में, ये कोई प्रॉब्लम बंदा सोचता भी नहीं है इस बारे में. We're facing these problems as well. अच्छा, so अब मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर बताऊँ एक बात. ये प्रॉब्लम हम नहीं फेस कर रहे, ये प्रॉब्लम छोटी कंपनी फेस कर रही है. हमारे लिए सेपरेट लाइन भी मिल जाती है, हमारे लिए हमारा इंटरनेट बंद भी नहीं होता. सब बिजनेसेस की अगर हम बात करें, सब बिजनेस ऐसे नहीं होता. सेक्टर जो अभी जो ब्लैकआउट्स होते हैं, जो बंद होता है, जो पॉलिटिक्स की वजह से मसले होते हैं, वो नॉर्मली मोबाइल डाटा पे होते हैं, वो
नॉर्मली वायर्ड इंटरनेट पे नहीं होते। और फिर उसमें भी एक ऑप्टिक्स में एक डिफरेंट लाइन आती है जो कि नॉर्मली कॉल सेंटर्स और हम लोग खरीदते हैं, जिसमें हमें ये मसले नहीं आते। ये मसले हैं और छोटे लेवल पे हैं, और ऑब्वियसली उनके लिए कोई फ्रीलांसर्स एसोसिएशन को बात करनी चाहिए। हमारे लेवल पे ये मसले नहीं है। हमारे लेवल पे अगेन जो कोर मसला है वो वही है कि यार हमारे एम्प्लॉय से टैक्स, और मैं उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि यार हमें एज अ बिजनेस टैक्स करें, मजीद टैक्स कर लें, कोई मसला नहीं, हम वी हैव मार्जिन्स, हमें टैक्स कर लें, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें। अब ये कितना सिंपल मसला है यार, हम ही कह रहे हैं हमें टैक्स कर लें, तो इसमें कोई मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। और मैंने पूरा मैथ भी बना के दिया था गवर्नमेंट को कि यार देखें इट्स इक्वल मनी, इट्स नॉट डिफरेंट, बट इट्स डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट। उनके और मसले होंगे शायद। आई एम होपिंग इन द फ्यूचर, या आई एम रियली होपफुल कि ये हो जाए। व्हाट्स द बिगेस्ट रिग्रेट दैट यू थिंक अगर ये नहीं होता तो थिंग्स वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे? I should have spent more time with my family. I should have understood the value. See, money cannot solve all your problems. Money can solve your money problems. And these are very important to solve. Don't get me wrong. Especially in a country like Pakistan. If you're a female, तो very important. Okay, you got to solve your money problem. But understand that there are 6 other things that you need to take care of. Your family, your hobbies, your religion, the bigger stuff, learning, and your healthcare also. So I did not focus on the 6 things. I just focused on one thing. And it all comes down to, देखिए, it's a privilege of a lifetime to be who you are. हम एक लिबादा ओढ़ते हैं क्योंकि हमने लोगों को इम्प्रेस करना होता है। सोसाइटी का अपना वे है हमें गिल्ट करने का। देयर आर मैनी पीपल हु आर इन मैरिजेस दैट दे आर नॉट हैप्पी, बट दे आर इन इट बिकॉज के सोसाइटी क्या कहेगी, हाँ सोसाइटी क्या कहेगी, बच्चों का क्या बनेगा, फलाने का क्या बनेगा, ये सारी गिल्ट्स हैं जो सोसाइटी हमें देती है, राइट? सो आई थिंक सूनर यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू आर लिविंग, एंड सूनर यू ट्राई नॉट टू लाई विद योर सेल्फ। दूसरों मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, इट्स ओके, मैं कैमरे बैठ कर झूठ बोल रहा हूँ, इट्स ओके, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट ओके। तो सूनर वी रियलाइज दैट इट्स गुड। सो अंडरस्टैंड हु यू आर, बिकम अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। बाय द टाइम यू आर डाइंग ना, you will know at that time it was your life to live, and you decided not to live your own life. So I would not want that. But there is a trade-off. If you want to achieve something big, you have to let these things, I don't think so. So people think that that's the balance करके चल सकते थे, you believe? बिल्कुल चल सकते थे। Okay. मैं बल्कि I would suggest कि जो imbalance है, that's more toxic for the society than the balance. So for example, let me give you an example. I met this guy who said, और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन मसला है कि कंबाइंड फैमिलीज होती हैं, अपने राइट्स नहीं होते, स्पेशली फीमेल के तो अपने राइट्स होते हैं। वो मुझे बता रहा था साहब के हम लोग ना, मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि यार देखो मेरी वालदा ना बूढ़ी हैं, जब ये मर जाएंगी ना 5-10 सालों बाद, तो फिर आप जिस मर्जी को इनवाइट करना, जितना मर्जी टाइम घर से बाहर गुजारना, जो मर्जी करना, अभी वो चूंकि बूढ़ी हैं तो अभी उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो एसेंशियली व्हाट ही इज सेइंग इज कि डू नॉट लिव योर लाइफ अनलेस माई मदर इज डेड। तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इज दैट? सो यू आर वेटिंग for them to die to live your life. Rather, you should live your life. You should set some boundaries where यार ये हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे. Everybody is happy and अल्लाह बहुत ज़िंदगी दे यार. आप उनके मरने का वेट क्यों कर रहे हैं? अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे. तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि no, it's not important that to take care of everyone. You need to take care of yourself. Yeah. And then see what you can do. Kindness और charity और business में फ़र्क होना चाहिए. ठीक है. And coming back to the last point जो आपने की कि जो आज का बच्चा है जो टेक में स्टार्ट करना चाहता है, हमारे पास ना एक पैटर्न है जो कि अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब एक ट्रेडिशन बन जाता है, दे हैव टू गो दिस एक लैडर्स हैं और उसके बाद जाके वो चीज़ होती है, ठीक है। सो ट्रेडिशनली जो लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपने फास्ट में आई थिंक यू स्टडीड इन फास्ट एंड देन यू वेंट अब्रॉड एज वेल, स्टैनफोर्ड का भी आपका है, तो आपने वो सारा रेगुलर जो पाथ है उसको फॉलो किया। आपके कैरियर में, आपकी सक्सेस में उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट था, और जो आज के लोग एजुकेशन परस्यू करने के लिए दे आर मेकिंग डिसीजंस, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? At any point of time, you should optimize for the best case for yourself. For me, I have the luxury to end up in universities. मेरी पहली universities, my mother sponsored me. She was very poor, लेकिन she sponsored me. Now, at that time, if my mother cannot sponsor me, so should I have to end up in a university? No, I don't have to end up in a university. I can still forge my path. लेकिन if you can end up in a university, it helps you a lot. It really helps you a lot. बड़ा नाम, बड़ी यूनिवर्सिटी का gives you a great network, great credibility. It's all about credibility when you are starting. क्योंकि शुरू में तो आपकी कोई credibility नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो credibility really helps. सही है, लेकिन it is not required. हर बंदे को अपने आप को evaluate करना है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 90% केसेस में you should go in a university. You should not listen to people who are saying कि डिग्री मैटर नहीं करती. You should not listen to people who are saying कि स्किल कर लो, गिग इकोनॉमी में चले जाओ. नहीं, लेकिन मुझे 10% लोग हैं जिनके अब बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और जिनको अभी फौरी तौर पर मसले हल करने हैं, उनको मेरी बात नहीं सुननी चाहिए. ठीक है, लेकिन जो लोग अपने करियर को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट हैविंग द लेवरेज टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़, क्या
उनको वापस एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए टू ग्रो इन देयर करियर, या आप सजेस्ट करेंगे कि व्हाटएवर दे आर डूइंग प्रोफेशनली दे शुड बी कंटिन्यूइंग टू डू दैट? मैं एज अ CEO ऑफ अ कंपनी आई जस्ट गॉट रीएडमिटेड टू हार्वर्ड और मैं वहाँ से चेंज मैनेजमेंट का कोर्स करके आया. अभी मैं दोबारा से पढ़ने जा रहा हूँ. सो एजुकेशन इज़ एन ऑनगोइंग फिनोमेना. यू हैव टू cut yourself from the world and then go to educate and then come back. This does not stop. Traditionally it was कि every 10 years it was required, now it's every 2 years. तो पहली बात तो ये कि एजुकेशन तो हर टाइम होनी चाहिए. एजुकेशन, सेफ्टी और हेल्थ पे पैसा ज़ाया नहीं होता. लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड करते और आपको काम करना है तो सही है, फिर ये आपकी मजबूरी है, ये नॉर्म नहीं है. यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड यूनिवर्सिटी. और जिस यूनिवर्सिटी का कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा हो ना, वो नॉर्मली इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होती है. अगर यूनिवर्सिटी का जो रेपो होता है ना, जो ब्रांड होता है, वो किसी वजह से होता है. इतना कॉन्स्पिरेसीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि नहीं यार ये मैटर नहीं करता, लम्स में जाओ, ये मैटर नहीं करता. सर मैटर करता है. आप ये नॉर्मली ये वही लोग कह रहे होते हैं जो लम्स नहीं गए होते. कोई एक लम्स का ग्रेजुएट आपको ये कहता नजर नहीं आएगा कि लम्स मैटर नहीं करता. कोई एक दिखा दे जो कहे कि हाँ यार मैं लम्स में गया था, मैटर नहीं किया था. नहीं, बेवकूफ़ाना बातें हैं. सारे वो लोग जो लम्स में नहीं एंड अप कर सके ना, वो ये कह रहे हैं हाँ यार मैटर नहीं करता. भाई आपको कैसे पता है मैटर नहीं करता? आप गए हैं उसमें अंदर. ऑफ कोर्स अगर आप कमाल थे और आप कहीं भी थे तो आपने कमाल कर लिया, लेकिन अगर आप कमाल होते और लम्स के होते तो फिर और ज़्यादा कमाल कर लेते हैं. मैं यूनिवर्सिटी नहीं बेच रहा, मैं लम्स या फास्ट नहीं बेच रहा. मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूथ का उठ बैठ रहा हूँ. ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है यूथ को, ये निकलना ज़रूरी है. परफेक्ट. आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं कि ड्रॉप आउट्स एंड ऑल दैट, दो इंस्पिरेशंस अपनी बना के बैठे होते हैं. लास्टली, if you would like to give a message to the young people across the world, aspiring entrepreneurs, तो just wanted to take some ending points कि एक लाइफ का गोल, जैसे आपने कहा कि पर्सनल गोल था 7.2 मिलियन, यू अचीव्ड है, ठीक है. नाउ इन द लाइफ टाइम व्हाट इज़ दैट गोल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, और क्या मैसेज है जो कि आप देना चाहेंगे? Let's have 5 minutes of your life, sit with yourself, have a cup of coffee, चाय, जो भी आपकी ऐसी फूड है जो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देती है, एंड आस्क योर सेल्फ कि व्हेन यू आर 78 years old, when it's only 10 minutes left in your life, what would matter to you at that point of time? How many awards did you get? How much money did you have? How much you were loved? How bold did you take your decisions? And I can bet your 78 years old self will tell you that the way it will make you proud is if you believe in yourself. Let's suppose you are part of a movie and there is a cinema watching you in the movie. वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिनेमा में हर बंदा इस टाइम चीख चीख के कह रहा होगा कि जिगर ये कर ले, और आप सुन नहीं पा रहे उसको. सोचें उस मोमेंट के ऊपर. तो आपके जो जितने लोग आपकी मूवी को देख रहे हैं वो सारे आपको ये कह रहे होंगे कि बिलीव इन योर सेल्फ. आस्क दैट गर्ल आउट इफ़ यू रियली लाइक हर. टेक अ डिसीजन ऑफ चूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप ओवर जॉब इफ़ यू वांट दैट. आस्क दैट बॉस दैट यू रियली वांट टू हायर यू, एंड डोंट सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ. एंड ऑल्सो लिव योर ओन लाइफ. वरना रिजेंटफुल रहेंगे. जो लोग अपनी लाइफ खुद नहीं जीते, वो दूसरों को लाइफ जीते देखते हैं, उनसे उनको नफरत हो जाती है. तो डोंट बी रिजेंटफुल, लिव योर ओन लाइफ. होपफुली विल एंड अप हैप्पी. Yeah, with everything, there is a cost to it. So thank you so much, Usman, for having us today. It was a pleasure talking to you. Thank you so much.